और पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हमको समझ में आए. मे द होली स्पिरिट ऑफ गॉड गाइड अस एंड लीड अस इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली वर्ड. एंड भाई जसविंदर इसका अनुवाद करेंगे. ब्रदर जसविंदर, वी आर रेडी फॉर द ट्रांसलेशन. ब्रदर, यू आर रेडी? जी brother, जी yes, ready. God bless you, brother. So now we are going to spend some time in the Word of God, and we will read some scripture here. Now we are going to read from. Uh, but before that, I once again thank God for this day and that we can come together in love of God together and praise. We've given Him praise. Now we are hearing. We are going to hear the Word of God. प्रभु के नाम की महिमा हो और प्रभु के अनुग्रह से हम अब प्रभु के वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम सब इकट्ठे हो सके और प्रभु का वचन सुन सके. We are going to hear read few scriptures from the Gospel of John, chapter 13. हम प्रभु के वचन में जाते हैं योना की अंजील में और उसके 13 अध्याय को खोलते हैं And we will read a few verses from here. और यहाँ से कुछ आयतें पढ़ेंगे. And we will read from verse 31. और हम 31 आयत से पढ़ेंगे. And verse 31 says, When he had gone out, Jesus said, Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई. Verse 32, If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him immediately. और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और वह तुरंत करेगा. Verse 33, Little children, I shall be with you a little while longer. You will seek me. And as I said to the Jews, Where I am going, you cannot come. So now I say to you. हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे. और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे Verse ही 30. Yes, yes. Continue, brother. वैसे ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ. Amen. Verse 34, A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. Amen. 35, By this all will know that you are my disciples, that you have love for one another. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. Now, in this verses, what we have read, the subject here is, the time here is that the Lord is going to be crucified after some time. और जो इसका विषय है यहाँ इस वचन का, वो प्रभु इसके बाद जो है, थोड़ी देर बाद प्रभु ने सलीब की ओर जाना है. Because in the verses in the beginning of this chapter 13 and all through the chapter 13, we know that the Lord gave them the bread and the wine, and He also sent, um, he also is introducing His death, which is going to come very shortly. और जब ये आप अध्याय देखते हैं, 13 अध्याय शुरू से ही, तो देखेंगे कि प्रभु ने यहाँ प्रभु भोज दिया है और बताया है कि उसके बाद उसने सलीबी मौत लेनी है. And He is also telling them that if you are my disciples,
and followers, you will love one another and stay together. और प्रभु ने कहा कि अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे और एक दूसरे के साथ बने रहोगे। And that we should believe that from where our Lord came and who is He. और फिर तुम जानोगे जहाँ से आया हूँ, तुम वहां से जानोगे। And uh, in verse 20 of chapter 13, he says, और उसने 20 आयत बोला है इसी अध्याय में। chapter 13 and verse 20, he says, और 13 में 20 में बोला है, Most assuredly I say to you, he who receives whosoever I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। I mean, this is the message, very important message Jesus is giving to his disciples before he is going to cross. इससे पहले प्रभु सलीब पर जाता, उससे पहले प्रभु ने ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है अपने चेलों को, That we must believe who sent him. और हम विश्वास रखें जिसने हमें भेजा है। We should know who sent Jesus in this world. और हमें पता होना चाहिए कि किसने प्रभु को भेजा इस संसार में। And if we receive Jesus, और अगर हम प्रभु यीशु को कबूल करते हैं then we receive God because God sent him as his son. तो हम परमेश्वर को कबूल करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही प्रभु को भेजा है। And in this chapter, in this time when he's talking this, he's also giving them a caution. He's giving them a warning, and he's giving them an information that he's going to be handed over by one of his disciples. और इसके साथ वो प्रभु एक चेतावनी और सूचना भी दे रहा है कि वो इसे हैंड ओवर करेगा आगे। And during this process of the Lord's Supper, he pointed it to the Judas that who is going to be responsible so that the Lord will be given to the cross. और प्रभु इसके साथ यहूदा के बारे में भी बताता है कि किस तरह वो कोई उसे आगे सौंपेगा। Therefore, as we read from verse 31 to 36, और हम 31 से 36 पढ़ते हैं जब, as we read just now, जैसा आपने पढ़ा है, and he gave them a new commandment that we should love one another. और इसके साथ प्रभु ने एक नई आज्ञा भी दी कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। And when Simon Peter asked him in verse 36, और जब पतरस ने 36 आयत में पूछा Where are you going? कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, And the Lord said, Where I am going, you cannot follow me now. प्रभु ने कहा जहां मैं तुम जा रहा हूं तुम अभी वहां नहीं आ सकते। This is not the time that you should follow where I am going. ये समय नहीं है कि तुम वहां जाओ जहां मैं जा रहा हूं, Because the Lord knows where He is going and why He is going, and no other man can go and do the job what the Lord is going to do. क्योंकि प्रभु जानता था कि वो जहां जा रहा है वहां अभी कोई भी इंसान नहीं वो कर सकता जो प्रभु कर रहा है। Because the Lord has been sent into this world for a particular reason, for a particular task. क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु को किसी मकसद के साथ, किसी विषय के साथ, निशाने के साथ भेजा था इस संसार में। No human being, no disciple, no prophet could do the work for which Lord was sent by God in this world. और ये कार्य कोई भी सेवक गण, कोई नबी, कोई प्रचारक, कोई नहीं कर सकता था जो प्रभु ने किया। Because this Peter was also a follower and disciple of Christ.
हालांकि पतरस भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला प्रभु का चेला था। So he is showing his respect and his love to the master and telling him, "Where are you going?" And he showed his desire that I want to come with you. तो वो चेला होने के अपना प्रेम प्रभु को दिखा रहा है कि जहाँ प्रभु तू जा रहा है मैं भी आना चाहता हूँ। And in verse 37, he says, "Lord, why I cannot follow you now? I will lay down my life for you." तो 37 आयत में वो कह रहा है कि "हे प्रभु, मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपनी प्राण भी दे दूंगा"। Peter was thinking from the worldly point of view. तो पतरस जो है वो एक संसारिक रूप में इसे देख रहा है। Because these disciples used to be with Christ in his ministry day and night, and wherever Jesus goes, they used to go with him. क्योंकि चेले जो थे वो दिन और रात प्रभु के साथ रहते थे और जहाँ प्रभु जाता था वो साथ साथ चलते थे। And so they also, and then they wanted to show that they love him so much that even if it is required, they can give their life for their Guru. और इसीलिए वो साथ चलते थे और उन्होंने यहाँ बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने प्राण भी दे देंगे। But Jesus knew his purpose, and Jesus knew that no one can follow him where he was going. प्रभु तो अपना मकसद जानता था और ये भी जानता था कि कोई भी मनुष्य उससे पूरा नहीं कर सकता। So he said to Peter in verse 36, "Where I am going, you cannot follow me now." तो इसीलिए प्रभु ने 36 आयत में बोला, जहां मैं जा रहा हूं अभी तुम वहां नहीं आ सकते। But he also said in the same verse, "You shall follow me afterwards." लेकिन उसके साथ प्रभु ने आगे बोला कि इसके बाद तुम आओ, मेरे पीछे आओगे। There will be a time when you will follow me. एक समय आएगा जब तुम मेरे पीछे आओगे, But at this time, you cannot follow me लेकिन इस वक्त तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। because the way I am going, no man can come after me in this way. क्योंकि जिस जगह रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पे कोई दूसरा नहीं अभी आ सकता। Because this way, for this way, the Lord God sent his Son Jesus Christ, our Lord, for this way, so that he should lay his life for us. क्योंकि इस रास्ते पर पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था कि वो हमारे लिए अपने प्राण दे। And even in that moment, if anybody loves Jesus, they cannot, and they are ready to go and give their life for Jesus, they cannot accomplish, they cannot fulfill the purpose of Jesus. अगर उस वक्त कोई प्रभु के पीछे चलता और अपना प्राण भी देना चाहता, तब भी वो मकसद नहीं पूरा कर सकता था That प्रभु is का। why Jesus told him, "You cannot come and follow me now." तभी प्रभु ने कहा कि तुम अभी मेरे पीछे नहीं आ सकते। Peter was very excited to do this, और पतरस तो इसे करने के लिए बहुत उत्साहित था, but he was excited like a man. परंतु वो उत्साहित जैसा एक मनुष्य, हर मनुष्य होता है, वैसे ही वो था। And he was talking very big that I can lay my life for you. और वो इसके विषय में पूरा निश्चित था कि वो अपना जीवन भी दे सकता है। It is very easy to say this. और ये कहना बड़ा आसान हो जाता है। And Jesus knew what Peter is telling. It is very, very difficult for a man to do. और प्रभु भी जानता था कि जो पतरस कह रहा है उसे पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। And in verse 31 and 32, we have seen that God will only glorify the Son of Man, that is Jesus Christ. Only God will glorify him. 31 आयत और आयत में हमने देखा कि परमेश्वर ने सिर्फ पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा दी है।
because he was the begotten Son of God and sent in this world for a purpose. क्योंकि वो परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र था और किसी मकसद के साथ संसार में भेजा गया था। And no man could fulfill that purpose for which Jesus came. और कोई भी मनुष्य उस मकसद को पूरा नहीं कर सकता था जो प्रभु ने किया। So many learned people and men of God came into this world, the prophets came into this world, but no one could fulfill the purpose. बहुत सारे संतगण और नबी इस संसार में आए हैं, लेकिन कोई भी प्रभु के उस मकसद को पूरा नहीं कर सकता था। Now, Jesus is going to fulfill that purpose, प्रभु यीशु मसीह ही उस मकसद को पूरा कर सकता था and he fulfilled it. और उसने किया भी। And he said, after some time, you will follow me. और उसने कहा कि कुछ देर बाद तुम मेरे पीछे आओगे। They will follow him, disciples will follow him, we follow him after Jesus was glorified. इसीलिए आप और मैं, हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को बाद में ही फॉलो किया। He was the first one to be glorified by God. और इसीलिए सबसे पहला वही हुआ जिसको महिमा मिली। He was the first one who overcame the death. वो इसीलिए वो पहला हुआ जिसने मौत पर विजय हासिल की। He was the first fruit of resurrection. इसीलिए वो पहला मुर्दों में से पहलौठा हुआ, जी उठने वाला पहलौठा है। The hope and promise of resurrection will only complete when the Son of God is resurrected. इसीलिए सारे पुनरुत्थान के जो वादे हैं तभी पूरे होते जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा था। When the graves were opened after the resurrection of Jesus Christ, they were only opened after the resurrection of Jesus. और जितनी भी वहां कब्रें खुली थी वो सब कब्रें बाद में खुली जब पहले प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। And God glorified his Son Jesus Christ, and then only we can become the followers and we can follow the way. जब प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली महिमा हुई, उसके बाद जाकर हम सभी प्रभु के पीछे चल सके। That is why when Peter offered that he can give his life for Jesus, Jesus said, no, you cannot, because you will deny me 3 times. तो इस जब पतरस ने भी ये इच्छा जाहिर की कि वो अपना प्राण भी दे सकता है, तो प्रभु कहता है कि नहीं, कि तू तो मुकर जाएगा। And this happened और ये हुआ भी because God was inside Jesus. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर था And God knows everything. और परमेश्वर सब जानता है। That is why Jesus told him, Peter, what you are talking, you cannot do that. इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो पतरस तू कह रहा है तू नहीं जानता। Forget about giving your life for me. भूल जाओ कि तुम अपना प्राण मेरे मेरे लिए दोगे। You will not even recognize me that you are my disciple. You will deny me 3 times. तुम तो ये भी मुकर जाओगे कि तुम मेरे चेले हो, और 3 बार मुकर जाओगे कि तुम मेरे चेले भी नहीं हो। So when we make promises to Jesus, Jesus knows our strength. Jesus knows how much faithful we are. तो हम जब प्रभु के साथ कोई भी इकरार करते हैं या कुछ भी वादा करते हैं, तो प्रभु जानता होता है कि हमारी हिम्मत, हमारी क्षमता क्या है। We cannot, Peter could not take the place of Jesus. तो पतरस प्रभु यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकता था। Jesus was going to give his life and his blood for the sake of the sin of the world. प्रभु यीशु मसीह संसार के सभी पापियों के लिए अपना प्राण दे रहा था। There was no great man present on this earth who could take the place of Jesus. इस संसार का कोई भी महान व्यक्ति प्रभु की जगह नहीं ले सकता। We,
we could get excited. Lord, you are my master. I love you so much. I will do everything for you. हम उत्साहित होके कह सकते हैं कि प्रभु, हम आपसे प्रेम रखते हैं और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। But Jesus knows who will stand for him. लेकिन प्रभु यीशु जानता है कि कौन उसके लिए जो है खड़ा रहेगा, And when somebody will stand for him. और कब कोई प्रभु के लिए खड़ा होगा। Now, Jesus did one prophecy in verse 36. और प्रभु ने 36 आयत में भविष्यवाणी की। And in that prophecy, Jesus is telling him, you cannot follow me now, तो प्रभु ने उस भविष्यवाणी में कहा कि अभी तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, but you will follow me afterward. लेकिन इसके बाद तुम मेरे पीछे आओगे। This is the prophecy. ये भविष्यवाणी है। This was not the right time for Peter to do everything for the Lord. ये सही समय नहीं है कि पतरस प्रभु के लिए ये सब कुछ करे। But Jesus knew as God that there is going to be a time when the same Peter will do everything for the Lord. लेकिन पिता परमेश्वर ये जानता था कि समय आएगा तो यही पतरस मेरे लिए सब कुछ करेगा। But before that, the purpose of Jesus Christ must be completed. लेकिन उससे पहले जो मकसद है वो पूरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना है। That is why we know when Jesus was resurrected, इसलिए हम जानते हैं जब यीशु मसीह जी उठा the same Peter was filled with the Holy Ghost. तो वो यही पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। And in Acts chapter 2, we know that what ministry he started. और प्रेरितों के काम 2 में हम देखते हैं कि फिर उसने किस तरह सेवकाई की शुरुआत की। And the words of Jesus Christ were fulfilled. और प्रभु यीशु मसीह का ये जो वचन था वो पूरा हो गया। According to Matthew chapter 16, मत्ती 16 के अनुसार, wherein Jesus said, I will build my church. यहाँ प्रभु ने वादा किया था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And the revelation of what the church will be was revealed to Jesus by the Holy Ghost, the Father. और प्रभु ने ये जो प्रकाशन दिया ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। That Peter understood who Jesus is. और तब पतरस ये समझ पाया कि ये प्रभु यीशु कौन है। In Matthew chapter 16, Peter could give the correct reply to Jesus' question that who Jesus is. और मत्ती 16 में जब प्रभु ने सवाल पूछा कि मेरे विषय में क्या कहते हो, तो वहां पतरस ने जब सही उत्तर दिया And Jesus immediately uh, corrected and warned Jesus and cautioned Peter, don't think that this is your wisdom that you have given the correct answer. उसी वक्त प्रभु ने उससे ये भी समझा दिया कि तुम ये ना सोचना ये तुम्हारी समझ ने बताया, But this is my Father who is in heaven. He has declared it to you. नहीं बल्कि इस प्रकाशन तुझे स्वर्ग में जो मेरा पिता है उसने दिया। So we know that all revelation comes from God. और जितने भी प्रकाशन आते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। Even if a man like Peter and Paul and James and John comes to preach us from any corner of the world, they cannot give us a revelation. और जितने सेवकगण पतरस यूहन्ना हुए जो सारे संसार में जो उन्होंने प्रचार किया है प्रकाशन का, They will not be able to reveal Jesus Christ to us और वो बिना उससे वो यीशु मसीह को नहीं प्रकट कर सकते थे unless it is given to them by the Father.
जब तक उन्हें परमेश्वर की ओर से ना दिया जाता। That is why all the writers of the Word of God, when they wrote this Bible, this is not their mind, this is not their intelligence. इसीलिए जितने भी प्रभु के जनों ने ये वचन को लिखा, और तब वो उनकी अपनी समझ नहीं वो थी जो लिख रही थी। Bible says the men of God were moved by the Holy Ghost to write this word. पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु के जनों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होके ये कलाम लिखा। That's why when Jesus was going to cross, nobody could follow him. इसीलिए प्रभु जब सलीब पर चढ़ा तो कोई भी उसके पीछे नहीं आ सकता था। But we must follow him when the job is done. और जब हम तभी उसके पीछे चल पाए जब उसने अपना कार्य पूरा किया। He gave the great commission to his disciples to go into the world, and according to Matthew 28. और उसने मत्ती 28 में अपने चेलों को आज्ञा दी कि अब तुम सारे संसार में जाओ। Here in this here in this situation, he is only telling them that he is going. यहाँ वो जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि अब वो जाने का समय आ गया है। At the same time, he is telling, and he is not going to forget them when he goes. और वो भूला नहीं जब वो गया। And he did not want to forget them when he is goes at this time, और वो वहाँ भूल भूल भूलना नहीं चाहता था जब वो जा रहा था। because he was very sure these people will look for me and they love me. और वो पूरी तरह जानता था कि ये मुझसे प्रेम रखते हैं और मुझे ढूंढेंगे। They have left their homes, they have left their business, they have left their families for me. वे इन्होंने मेरे कारण अपना घर परिवार अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया। Today, if we have left our houses, our jobs, our businesses, our families, our relatives for the sake of Jesus Christ, he will not leave us alone. आज अगर आज भी हम अपना घर परिवार काम धंधा बिजनेस प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ते हैं तो प्रभु हमें नहीं भूलता। Because when he was leaving Peter at this time, he left with a promise. और इसीलिए प्रभु जब रुक गया तो प्रभु ने अपना वादा उसको दिया। And that promise he gave to Peter also applied to all the disciples. और जो वादा प्रभु ने पतरस से किया वो सब पर लागू होता है। By grace of God, we people today, we are living in the time when Jesus was already glorified. हम तो उस समय में रह रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह को और महिमा मिल चुकी है। Here he has not yet been glorified for the sake of men, and in verse 31 and 32, he is he is showing, he is praying that God is going to glorify him. और किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। और 31 आयत में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। He was the obedient and faithful Son of God in the human body. वो मनुष्य शरीर में पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। And that is why God glorified him. इसीलिए परमेश्वर ने भी उसकी महिमा की। And that glory God would not give to anybody. और ये महिमा प्रभु ने किसी और को नहीं दी। Because for the sake of this glory only, God gave his word a human body. और प्रभु परमेश्वर ने ये महिमा उसे जब वो शरीर में था तब दी। He gave him a body so that he can die for our sins. और उसने उसे शरीर दिया ताकि हमारे पापों के लिए वो कुर्बानी दे। Jesus was the word of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। He he was he was that word by which he created the world. और वो वचन वो था जिस वचन के द्वारा ये संसार बना। He was the logos.
वो लोगस था। and he gave that human body to the Logos. और उसने वही लोगस ने वो बदन लिया। And in the Logos, when he became the human body was called Jesus. और वो लोगस ने जब शरीर लिया तो वो लोगस उस शरीर में यीशु मसीह कहलाया। He was born of the Holy Ghost and he was kept in the womb of Mary. वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और मरियम के द्वारा पेट में रखा गया। And when he was born, we all know how he was born. वो जब वो पैदा हुआ हम सभी जानते हैं वो किस तरह उसका जन्म हुआ। And what was his early ministry and total ministry until he went to the cross. और उसकी शुरुआती सेवकाई और तब तक की सेवकाई जब तक वो सलीब पर चढ़ा हम सब देख जानते हैं। This was the way he was going. ये वो तरीका था जिस पर वो चला। That is why he told Peter, "You cannot come where I am going." तो इसीलिए उन्होंने पतरस से कहा कि तुम अभी मेरे पीछे नहीं आ सकते। He knew that Peter, the moment they identify Peter to his disciple, the Peter will be afraid and he will deny him 3 times. वो प्रभु जानता था कि वो डरेगा और 3 बार मुकर जाएगा। But there will be a time that Peter will be strong in faith when he is filled by the Holy Ghost. प्रभु जानता था कि एक समय आएगा जब वो पवित्र आत्मा से भरेगा और तब वो तगड़ा होगा। And the same Peter, to him, Jesus said, "I will give you the keys to the kingdom of heaven." और प्रभु ने उसी पतरस को कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां दूंगा। And the kingdom of heaven is the body of Christ. और स्वर्ग का राज्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह का बदन है। Because kingdom of heaven is revealed to the body of Christ. क्योंकि स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ। And when we become a part of the body of Christ, then we become the member of the kingdom of heaven. जब हम प्रभु यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। Bible says in John 3 and 3, Jesus told Nicodemus, when you are born again, then you can see the kingdom of heaven. Without this, you cannot see the kingdom of heaven. यूहन्ना की अंजील उसके 3 के 3 में प्रभु ने निकोदेमस को बोला, जब तुम नए सिरे से जन्म लेते हो तब तुम स्वर्ग के राज्य को देख पाओगे। So simply when we say, I believe in Jesus Christ, I read the Bible, I go to the church, so I am a member of the kingdom of heaven, this information is not complete. जब हम कह देते हैं प्रभु पर ईमान रखते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, तो ये पूरी तरह से इसका मतलब नहीं कि हम स्वर्ग के वारिस हो गए हैं। We do good things and we are nice to the people and people appreciate us and all these things. We have a church membership, we give our tithes and all those things. So now we are going to heaven. हम अच्छे हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सभी के साथ अच्छे हैं, हम दसवंध भी दे रहे हैं, हम तो स्वर्ग के वारिस हैं। तो But ये भी Jesus said, unless we are born again, we cannot see the kingdom of heaven. प्रभु ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। If it applies to Nicodemus, it applies to us and everybody. ये निकोदीमस पर ही नहीं, ये हम पर भी लागू होता है। So we have to see ourselves, where do we stand? तो हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। Are we born again? क्या हम नए सिरे से जन्मे हैं? Do we know how to be born again? क्या हम जानते हैं कि नए सिरे से कैसे जन्म लेना है? Bible says in First Peter chapter 1 and verse 23, इसीलिए बाइबल में पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 20 आयत में लिखा है, how we are born again. हम किस तरह दोबारा जन्म लेते हैं। We are born again
by the incorruptible seed of the Word of God. हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्म लेते हैं। So we must be born of the Word of God. तो हमने परमेश्वर के वचन के बीज से जन्म लेना है। And this is the new birth. ये नया जन्म है And this must be done by the water and the Spirit as per Jesus Christ in John chapter 3 and verse 3. योना 3 के मुताबिक हमें पानी से और आत्मा से जन्म लेना है। Now we should understand what is that water. हम समझना है कि पानी क्या है। It is not the water of baptism. ये पानी बपतिस्मे वाला पानी नहीं है। This answer is given in Ephesians 5:26. इसका उत्तर इफिसियाँ 5 और उसके 26 में लिखा है। We are washed by the water of the Word of God. हम परमेश्वर के वचन के जल से शुद्ध किए गए हैं। So when we say we should be born of the water and Spirit, तो जब हम जानते हैं कि जब हमने आत्मा और पानी से जन्म लेना है, that water is the Word of God. तो पानी परमेश्वर का वचन है And that water is also called the seed of God. और वचन परमेश्वर का बीज भी कहलाता है। As we know, 1 Peter 1:23 is the seed of God. पहला पत्रस 1 की जैसा हम पढ़ते हैं कि वचन जो है परमेश्वर का बीज है। And Ephesians 5:26, the same word is called the water. और इफिसियाँ 5 की 26 वही वचन को बीज बताया जा रहा है। But we cannot be born again हम तब तक पैदा नहीं हो सकते unless we are influenced by the Holy Ghost. जब तक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना हो। Jesus could not be conceived in the womb of Mary unless she was overshadowed by the Holy Ghost. तो यीशु मसीह तब तक पेट में नहीं आ सकता था जब तक मरियम पवित्र आत्मा के अधीन ना होती। And how did she get the overshadow of the Holy Ghost? तो पवित्र आत्मा उस पर कैसे आया? Because she received the word of God in her heart by faith. क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में विश्वास के साथ लिया। She had complete faith that message which the angel brought, the messenger brought, she believed that message and she received that message, and that message was the seed. और क्योंकि जो फरिश्ता परमेश्वर का संदेश लेके आया उसने उस संदेश पर विश्वास किया और वो वचन संदेश जो परमेश्वर का बीज था। She believed that message with whole heart. और उसने उस संदेश को पूरे हृदय से विश्वास किया। And that belief was so strong that she got Jesus Christ in her womb. और उसने पूरे मजबूती से विश्वास किया और फिर वो वचन जो देहधारी हो गया। We know from the book of Genesis, हम उत्पत्ति में जानते हैं the word of God has the power to create. कि परमेश्वर के वचन में चीजों को पैदा करने की ताकत है। The body of Jesus Christ was created in the womb of Mary by the word of God. तो परमेश्वर के वचन से मरियम के अंदर जो वचन था वो शरीर ले गया परमेश्वर की सामर्थ से। And that seed which was conceived in her womb became a body. और जो वचन था उसके अंदर उसने शरीर लिया। That is why the word of God and the Holy Spirit both are required for our new birth. तो इसीलिए परमेश्वर का वचन का बीज और पवित्र आत्मा दोनों ही हमारे नए जन्म के लिए आवश्यक हैं। When somebody says, I heard the word of God,
somebody preached to me the word of God, so now I am saved. तो अगर कोई कहे कि मैंने परमेश्वर का वचन सुना और मैंने उस पर विश्वास किया और मैं बच गया, But that has to be the word of God if it is preached by the power of the Holy Ghost. पर ये वचन जो प्रचार है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। So many preachers can come and preach the word and think that this word, we can think this is the word of God and I want to believe it and I will be now saved. बहुत सारे संसार में प्रचारक हैं जो लोग कहते हैं कि हम ये प्रचार पर विश्वास किया, हमने विश्वास करते हैं जो संदेश दिया इन्होंने। Devil also came in the Garden of Eden and preached the word to Eve. शैतान भी बाग अदन में आया और उसने भी वहां प्रचार किया, But he had a seed which was not pure seed. परंतु उसके पास जो बीज था वो अविनाशी बीज नहीं था, सही It, बीज नहीं था। it was the bead, it was the seed of mixing. और उसके पास जो बीज था वो मिलावटी बीज था, It was not pure seed. ये शुद्ध नहीं था। Devil also has a seed, शैतान के पास भी बीज है, but his seed is different from the seed of God. परंतु उसका बीज परमेश्वर के बीज से बिल्कुल अलग है। So many people can come and give and preach the word of God and think that we receive the seed. बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं और कई बार हम लोग कहते हैं कि हमने वो बीज पाया। But how do we know this seed came from God? हम कैसे जाने कि ये बीज परमेश्वर की ओर से है? That seed must align with the word of God. जो बीज है वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाता होना चाहिए It must agree 100% with the word of God. और ये परमेश्वर के वचन के साथ 100% सही होना चाहिए। That is why we must remain connected with the true word of God. इसीलिए हमें लगातार परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना है। That is why we must continuously study and fellowship with the people who are the word of God, with the word of God. इसलिए हमें लगातार दुआएं, प्रार्थनाएं, संगति परमेश्वर के लोगों के साथ वचन का बीज पाए, वचन पाए लोगों के साथ करते रहना है। And we should be very careful that who is preaching to us and what he is preaching. हमें बहुत सावधान रहना है कि कौन प्रचार कर रहा है और क्या प्रचार कर रहा है। When somebody is preaching his human teaching and human technology and human intelligence, it is very dangerous. जब कोई अपना मनुष्य प्रचार करता है, मनुष्य संसारिक प्रचार करता है, संसारिक सिस्टम, तो ये तो बहुत खतरनाक है। Even a small word, even one word can make the difference from heaven to hell. एक छोटा सा भी बिंदु शब्द एक बड़ा अंतर दे सकता है, स्वर्ग नरक जैसा जितना। This is how it happened in the Garden of Eden. देखिए यही बाग अदन में हुआ। Devil only used one word. He used the word not. You will not die. And God said, you will die. शैतान ने देखिए सिर्फ यही कहा नहीं, सिर्फ उसने शब्द लिया नहीं, तुम नहीं मरोगे। It looked very small to Eve. There is everything else he is telling the same, but he is only telling that I will not die because he is giving a good reason why we will not die. देखिए उसने बड़ा छोटा शब्द इस्तेमाल किया नहीं, उसने उसने सिर्फ छोटे शब्द को, बाकी सारा प्रभु का वचन लिया और उसने सिर्फ साथ लगा दिया, नहीं तुम नहीं मरोगे। Today, when many preachers come to preach to us and we go to different churches, जब हम अलग अलग संस्था में जाते हैं आज, they make very small changes in the Word of God. और वो भी एक छोटा सा हल्का सा बदलाव करते हैं परमेश्वर के वचन में। And they read most of the scripture from the Bible. और ज्यादातर वो वचन परमेश्वर के कलाम बाइबल से पढ़ते हैं।
And then they make very small change here and there where sometimes we cannot even catch them. और वो दाएं बाएं से फिर मिलावट डाल देते हैं, कई बार हम पकड़ भी नहीं पाते। Rather, they make the preaching so interesting that we come into the flow of that preaching and we get carried away because of the good words they speak. क्योंकि वो इस हिसाब से प्रचार करते हैं अच्छे तरीके से कि हम उसे नहीं पकड़ पाते, And we are so much convinced by their preaching. और हम उसके प्रचार से बड़े प्रभावित हो जाते हैं, We are not able to realize they have taken us out of the word of God. और जान नहीं पाते कि परमेश्वर के वचन से बाहर ले गए हैं। Why we cannot catch it? क्यों नहीं पकड़ पाते? Because we are looking at the knowledge. क्योंकि हम संसारिक ज्ञान की ओर देखते हैं। We looking at the good word, the good personality, a big church and very good attractive words, and the man is very well dressed up and talks a good language and looks very respectable. बड़े चर्च, बड़ी कलीसिया, अच्छे कपड़े, अच्छा इंतजाम, अच्छा तरीका देखते हैं, Without realizing that God's word is very simple. ये बिना जाने कि परमेश्वर का वचन बड़ा ही साधारण तरीके से आता है। We cannot understand the word of God without the overshadowing of the Holy Ghost. और बिना पवित्र आत्मा पाए हुए हम परमेश्वर का वचन नहीं जान सकते। That is why when we read the scriptures, when we hear the scriptures, when we try to follow the scripture, we must pray to God to open our wisdom by the power of the Holy Ghost. इसीलिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो पहले हम प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें ऐसी समझ दे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके कलाम को समझ सकें। The body of Jesus Christ could not be born without the power of Holy Ghost. प्रभु यीशु मसीह का बदन तब तक नहीं बन सकता था जब तक पवित्र आत्मा ना होता मलिन पर। We are also not becoming the body of Christ unless we are filled with the Holy Ghost. हम भी प्रभु के बदन का हिस्सा नहीं बन सकते थे जब तक पवित्र आत्मा ना पाते। The beginning of the body of Christ, which is the church, started in Acts chapter 2 on those people who were filled with the Holy Ghost. वो प्रभु की कलीसिया की जो पहली शुरुआत हुई प्रेरितों के काम में, तो वहाँ पर सब कलीसिया प्रभु का बदन पवित्र आत्मा से भर गए थे लोग। And Peter was also filled with the Holy Ghost. पतरस भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। Both parties must be filled with the Holy Ghost to understand the Word of God. दोनों ही तरफ से पवित्र आत्मा भरे होने चाहिए, सुनने वाला और प्रचार करने वाला भी परमेश्वर के कलाम को लेने के लिए। Then only we can be born of the Spirit and the water. तब जाके हम जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म सकते हैं। The Spirit is the Spirit of God, पर आत्मा जो है वो प्रभु का आत्मा है, and water is the Word of God. और जल परमेश्वर का वचन है। These are the words that Jesus told that if we have to see the kingdom of God. ये वचन जो प्रभु ने दिए थे कि अगर तुम परमेश्वर का राज्य पाना चाहते हो। And when the time came in the book of Acts, then Peter was filled with the Holy Ghost. प्रेरितों के काम में जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, The power of the Holy Ghost will make us brave. We cannot be scared. We cannot deny Jesus if we have received Holy Ghost. परमेश्वर का आत्मा मेरी का आत्मा है, फिर हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते। The same Peter who was scared of his death when he was identified and he denied Jesus Christ 3 times. वही पतरस डर गया और 3 बार प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए इनकार कर गया। Although he was boasting that he will give life for Jesus. और वही जो कह रहा था कि प्रभु तेरे लिए प्राण भी देने को तैयार हूँ। Same man become so much fearful
that he denied his master 3 times. वही व्यक्ति कि कितना डर गया कि वो 3 बार मुकर गया। By the divine nature, Jesus Christ knew this fellow will deny me 3 times. प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये 3 बार इनकार कर जाएगा। Today, also, brothers and sisters, when we are not filled with the Holy Ghost, we make very big promises for the Lord. इसीलिए आज भी भाई और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते, हम भी बड़े वादे कर जाते हैं। We say, Lord, I will stand. If anybody will come and ask me for my faith, I will not go away and I will die, but I will claim my faith in front of those people. हम अगर प्रभु भी मुझे भी मेरे विश्वास के बारे में पूछे, तो मैं मरने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। Dear brothers and sisters, let us examine ourselves. आइए भाई और बहनों, हम अपने आप को जांचें। If any, if tomorrow a situation comes अगर कल हमारे ऊपर ये परिस्थिति आती है that we have to compromise our faith, तो हमें अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। do we compromise our faith or do we stand for Jesus? क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे या हम विश्वास पर खड़े होंगे? If we check ourselves honestly today, अगर हम ईमानदारी से अपने आप को आज जांचे, our heart will straightway tell how many times we deny Jesus every day. तो हम मेरा दिल कहेगा कि कितनी बार हम प्रभु का इनकार कर जाते हैं। We do many things where we deny Jesus every day. हमने दिन बहुत बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है We claim to be Christians. और हम विश्वासी कहलाते हैं We claim to be going in rapture and become citizen of heaven. और हम दावा करते हैं कि हम रैप्चर में जा रहे हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। But in very small things, we compromise with the word of God. पर बहुत छोटी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। We don't know in which fellowship we are sitting. हम जानते नहीं हम कौन सी संगति में रह रहे हैं। We don't know whose preaching we are believing. हम जानते नहीं कौन प्रचार कर रहा है। We always say, oh, he's a very good preacher. He comes from a very good church. He's a very nice man and he presents the message very nicely. He must be man of God. वो बड़े अच्छे चर्च है, बहुत अच्छा प्रचारक है और बहुत अच्छा प्रचार करता है। Because we are missing the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा नहीं है। Without the help of the Holy Ghost, we cannot recognize the trick of the devil. बिना पवित्र आत्मा पाए हम शैतान की चालों को नहीं समझ सकते। In John chapter 14 यूहन्ना 14 में प्रभु ने बताया है, and verse 26, 26 में बताया है, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. जब पिता आए अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। So Jesus himself said, who is my teacher? तो प्रभु ने खुद बताया कि हमारा सहायक कौन है। It is the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा है। And when Holy Ghost is teaching me, तो जब पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा, then only I will understand the mystery of the Word of God. तब जाके मैं परमेश्वर के वचनों का भेद समझ सकूंगा। And if we go to the First Corinthians chapter 2, और हम अगर पहले कुरिन्थियों में 2 में जाएं, if we open First Corinthians chapter 2,
पहला कुरिन्थियां और उसका 1 का 2 खोलते हैं। And here also we know what is the role of the Holy Ghost. तो हम यहाँ पर जानते हैं कि पवित्र आत्मा का भी कार्य क्या है। Now, in 1 Corinthians 2:16, पहला कुरिन्थियां 2 का 16। he says, uh, eh, no, in 1 Corinthians uh, chapter 2 and verse, I'll give you the verse here, verse 10. 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. पहला कुरिन्थियां 2 अध्याय उसकी 10 आयत। Rather, we should read some verses from above uh, to understand what he means here, what Paul is talking here. तो यहाँ हम कुछ आयतें के कलाम को समझने के लिए। Now, Paul is talking that when he goes to the people as a preacher, और जब पौलुस परमेश्वर का प्रचारक होके जाता है प्रचार करने के लिए, he says in 1 Corinthians chapter 2 and verse 1, वो पहला कुरिन्थियां 2 की 1 से बता रहा है। he says, Brethren, when I came to you, I did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। Verse 2, For I determined not to know anything among you except the Jesus Christ and him crucified. क्योंकि मैंने ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा। In verse 3, he says, I was with you in weakness and in fear and in much trembling. मैं निर्बलता के साथ तुम्हारे साथ बहुत थरथराता हुआ साथ रहा। So Paul did not come to them like a very, very great preacher or evangelist or a prophet or something great. तो पौलुस कोई बहुत बड़ा प्रचारक बनकर नहीं आया था। He was a big preacher sent from God, वो एक बहुत प्रभु का एक बड़ा सुसमाचारक था, प्रचारक था। but he was not proud of himself that he is a great man. उसने कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं किया कि वो एक बड़ा प्रचारक है। We cannot make ourselves great for God. God makes us great. तो हमें भी अपने ऊपर कोई घमंड नहीं करना। प्रभु प्रभु हमें चाहे जितना मर्जी बढ़ा रखे। He says, I came to you in my weakness and fear. वो कह रहा मैं तो अपनी कमजोरी के साथ मेरे पास आया। And he says that by saying this, he is telling that he is a humble man. वो कह रहा वो तो एक बड़ा ही हलीम इंसान है। And he makes it more clear in verse 4. और उसने 4 आयत वो क्लियर बताया है। And in my speech and my preaching, there were not very persuasive words of human wisdom, but the demonstration of the Spirit and power. मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। So he is not preaching good words, good good language, and convincing words and convincing lecture. No, he is demonstrating the Spirit and power of God. तो वो कोई आकर्षित बातें लुभावने वाली बातों से नहीं वो लुभा रहा किसी को। In verse 5, he says that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। And he is making this subject more and more clear in the verses below. और नीचे जब आप पढ़ते जाएंगे बाद में तो और ज्यादा वो क्लियर बताता जा रहा है।
And in verse 10 he says, और 10 आयत में वो but God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें बल्कि परमेश्वर की गहरी बातें भी जानता है। In this chapter, he's teaching them the power of God can only be manifested by the Holy Ghost. तो यहाँ बता रहा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो मनुष्य पर प्रकट करता है। But because the word of God is mystery, परमेश्वर का वचन भेद है, it is not declared, it is not given to everybody. ये हर किसी को नहीं दिया जाता, It is only given to them who have received, who by faith have received the grace of God. ये उन्हें दिया जाता है जो विश्वास के साथ इसे पाते हैं, Not a normal faith, और एक आम विश्वास नहीं, a perfect faith. संपूर्ण सही ईमान विश्वास। I must believe the word of God in all things, in all circumstances, in all conditions. मुझे परमेश्वर के वचन पर हर हालातों में विश्वास रखना है। And when I say I believe, I will obey. तो मैं जब कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ तो मुझे आज्ञाकारी भी रहना है। To believe the word of God means to work and obey the word of God in my life. तो यानी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में भी लागू करना है। In verse 7, he says, 7 आयत में, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। And in verse 10, we just read that those things are revealed to us through the Spirit. 10 आयत में लिए हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। 11th verse, he says, for what man knows the things of a man except the spirit of a man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता, केवल मनुष्य का आत्मा। वैसे ही परमेश्वर की बातें केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। Now he's trying to compare with the spirit of man and spirit of God. तो यहाँ पर उसने मनुष्य का आत्मा और प्रभु का आत्मा में फर्क बताया है। The spirit of every man has a spirit, हर मनुष्य का अपना है, and if that is the spirit of the world, और वो संसार का आत्मा है, it is not necessary that it will teach us the things from God. और ये परमेश्वर की बातें नहीं सिखाता, Because the things which come from the spirit of man are worldly, but the things which come from the spirit of God, they are spiritual. जो मनुष्य की ओर है वो संसारिक होती हैं, जो प्रभु की ओर से आती हैं वो स्वर्गीय होती है, आत्मिक। The kingdom of the devil comes from the spirit of man in this world. और शैतान का भी आत्मा इस संसार में कार्य करता है, But the Spirit of God brings us into the kingdom of heaven. लेकिन प्रभु का आत्मा हमें स्वर्ग लेके जाता है। See what the 13th verse says. यही वो 13 में बता रहा है। In these things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing the spiritual things with spiritual. हम यही है, आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर बताते हैं। Therefore, he says in verse 14, the natural man cannot receive the things of the Spirit of God
but they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. क्योंकि शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातें नहीं ग्रहण करता, आत्मिक बातें आत्मिक मनुष्य ग्रहण करता है। Therefore, brothers and sisters, it is very important for us आइए भाई बहनों, इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। God will only glorify us if we are his sons and daughters. प्रभु तभी हमें महिमा देगा अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं। God glorified his begotten Son, Lord Jesus Christ, because he was born of the Holy Ghost. उसने उसे इकलौता क्योंकि वो आत्मा से पैदा हुआ। Jesus Christ did not deserve, Jesus Christ did not need a new birth. प्रभु यीशु मसीह को नए जन्म की आवश्यकता नहीं थी। He was already a new birth. उसका पहले ही नए सिरे से जन्म हुआ था। He was never born in sin like us. वो हमारी तरह पाप में पैदा नहीं हुआ था, So he doesn't need to be born again. उसे आवश्यकता नहीं थी। He was already born of the Holy Ghost. वो पहले ही आत्मा में पैदा हुआ था। We were also born of the Holy Ghost, but our nature was corrupted because of the fall in the book of Genesis. वो हम इसीलिए पाप में पैदा की उत्पत्ति में ही पाप में गिर गए थे, Because we made a wrong choice. कि गलत फैसला लिया। We took the choice of the fruit of the knowledge of the good and evil. That is the choice we made. तो जो ज्ञान भले और बुरे के ज्ञान का फल का जो था, वो गलत गलत फैसला लिया। Today also we make the wrong choice. आज हम भी गलत फैसले लेते हैं। That is why we need to correct our choice. हमें अपने आप को सही फैसले लेने हैं। And to get the correct choice means we must be born of the water and the spirit. तो हमें आत्मा और जल से जन्म लेना है। God will only glorify his sons and daughters. प्रभु सिर्फ अपने बेटे बेटियों को महिमा देता है। To become his son and daughter, I must be having a new birth. तो हमें नया जन्म लेना है। That's why we must be born again. हमें दोबारा जन्म लेना है। If we are not born again, अगर हम नहीं लेंगे, we cannot see the kingdom of God. प्रभु के राज्य को नहीं देख पाएंगे। And if we cannot see the kingdom of God, और अगर हमने नहीं देखा, we cannot spend eternity with God. हमेशा प्रभु के साथ नहीं रह पाएंगे। So we must pray and look for the new birth. तो हमें हमेशा ही दुआ करनी है और नए सिरे से। Those who are born again, they know that they are born again. और जो पैदा हुए हैं वो उन्हें होना है। They are not, those who are not born again, they must be born again by the water of the word of God and power of the Holy Ghost. जो अभी तक नहीं जन्म लिया, उन्हें दोबारा जन्म लेना है। Therefore, it is very important for us. ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। If we want to go with the Lord in the rapture, और अगर हम प्रभु के साथ जाना चाहते हैं, we have to be wise virgin. हमें एक समझदार बनना है। We must carry the oil in our lamps every day, every time. हर रोज हमें तेल भरना है। The lamp is the oil is the power of the Holy Ghost to teach us the truth every day. और वो हर रोज हमें So that if the Lord comes now, और ताकि प्रभु अगर आ जाए, we will be found with the oil वो तेल से पाए जाएं and he will take us. और वो हमें ले जाए। We must be ready for this. आइए भाई, हमें तैयार रहना है आपस में। May we pray for each other और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, that God will guide us. हमें प्रभु अगुवाई करे। So God bless you all. वो आप सबको आशीष दे। And by this we complete today's meditation on the word of God, and may God bless us with these words. प्रभु इस वचनों के द्वारा आज बहुत सारी आशीष दे।
not the word of the man, but the word of God. मनुष्यों के वचन के नहीं, प्रभु के वचन के द्वारा। We thank God for everything. चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। God bless you, Brother Jaswinder, for the translation. Thank you, आमीन। brother. God bless you, brother. Now we will close this meeting with a word of prayer with Brother Surinder. भाई सुरेंद्र के साथ हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना सभा को प्रभु की आशीषों के साथ और पवित्र आत्मा के दान के मांगने के लिए, हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हम सबको ऐसी आशीष दे जैसा उसने हमें अपने अपने वचन से बताया कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है और सच्चाई में बने रहना है। तभी हम उसके पास जा सकते हैं, तभी अनंत जीवन को हासिल कर सकते हैं। तो भाई सुरेंद्र, गॉड ब्लेस खुदावंद की स्तुति हो अच्छे मैसेज के लिए। आइए हम अपनी मीटिंग को खुदावंद के हाथों में देते हुए इस मीटिंग का समापन करते हुए हम खुदावंद से आखिरी प्रार्थना करते हैं। हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस अच्छे संदेश के लिए जो आज उसने हमारे जरूरत के अनुसार दिया। हालेलुया। हमारे आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे आत्मा प्राण दे के रखवाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर समय में प्यारे बाप आसमानी, तूने अपने बच्चों की भूख और प्यास को देखते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय में तूने हमें विजिट किया प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरी उपस्थिति पूरी मीटिंग में रही प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, जो भी हमने क्रूस की कथा सुनी है प्यारे पिता, जो हमारे उद्धार की कथा है प्यारे बाप आसमानी, इसमें और ज्यादा से ज्यादा लौलीन बने रहने का तू हमें फजल प्रदान कर प्यारे बाप आत्मा ने। तू अपनी आत्मा से हमें भर दे प्रभु जी, क्योंकि बिना तेरे आत्मा के हम एक सिंपल मिट्टी के पुतले हैं प्यारे बाप आसमानी। लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमसे वादा किया कि मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। प्यारे बाप आसमानी, तू अपने आत्मा से हमें भर दे प्यारे पिता, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां बन सके प्यारे बाप आसमानी। हम अच्छे नहीं है प्यारे बाप आसमानी, जब हम अपने आप को सर्च करते हैं तो हम पाते हैं प्यारे बाप आसमानी, हमारे अंदर कोई खूबी और कोई लियाकत हमारे अंदर नहीं है प्रभु जी। इस संसार में हम सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन प्यारे पिता तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, तूने हम जैसे निकम्मों को चुन लिया प्यारे प्रभु, ताकि इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे होठों के द्वारा तू स्तुति ले प्यारे बाप आसमानी। हम जैसे भी हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरे सामने हाजिर हैं प्यारे पिता, अपने सरों को तेरे सामने नतमस्तक करते हैं प्यारे पिता, और विनती करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तू अपनी आत्मा से आए हुए हर एक भाई बहन को भर दे प्रभु जी। प्यारे पिता, जो भी जैसी भूख और प्यास लेकर तेरे चरणों में आया प्रभु यीशु मसीह, तू उनकी भूख और प्यास को जानता है प्यारे पिता। हमारी भूख और प्यास तुझ में तृप्त होती है प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे बाप आसमानी, तेरा वचन वास्तव में खाने की चीज है प्रभु, जो हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है प्रभु, जो हमें अनंतता के लिए तेरी फेलोशिप के लिए तैयार करता है प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम अपने तमाम गलती और गुनाहों को प्रभु जी तेरे सामने अंगीकार करते हैं प्यारे पिता, और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। आए हुए हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, जो जरूरतमंद है प्रभु जी, हमारे कुछ बोझ हो सकते हैं प्यारे बाप आसमानी, वो भी हम तेरे चरणों में लेकर आए हैं प्यारे पिता। अपने बच्चों को आजाद कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन रूपी जल से धोकर स्नान करा के प्रभु जी हमें शुद्ध कर दे प्यारे पिता। हमारे प्यारे पिता आशा और भरोसा तुझ पर है प्रभु जी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है प्यारे पिता, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है प्यारे बाप आसमानी। हम किसके पास जाएं प्रभु यीशु मसीह, जब तेरा आत्मा हमारा टेक चार्ज लेता है, हमारा कंट्रोल लेता है प्रभु यीशु मसीह, तो हम और मनुष्य के समान ऑर्डिनरी नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरे बेटे और बेटियां बन जाते हैं प्यारे पिता। ये तेरा कलाम हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, तेरे बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं प्यारे पिता, उन्होंने तेरी उपस्थिति का आनंद लिया, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के प्रचारे गए मैसेज के लिए प्रभु भाई इमानुएल का हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बुजुर्गी में प्रभु अब तक तो इस्तेमाल कर रहा है प्यारे पिता, और बहुतायत से इस्तेमाल कर प्यारे बाप आसमानी, अपनी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि तेरी भेड़ें प्रभु जी तेरे गले में और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हो सके प्रभु यीशु मसीह। भाई जसविंदर को बड़ी आशीष दे प्रभु, ट्रांसलेशन के कार्य में प्रभु, इस मिनिस्ट्री में भाई का बहुत अच्छा
सहयोग है प्रभु जी, उस भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उसके परिवार, उसके खानदान को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। जितने भाई बहन यहाँ आए हैं प्रभु जी, अपने कीमती समय को छोड़कर प्यारे पिता, हर एक को तू नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हम में से कोई बीमार, कमजोर, लाचार है प्रभु जी, तो उसकी स्तुति ले प्यारे पिता। जितनी भी हमारी से प्रार्थना, हमने प्रार्थनाएं की हैं प्यारे पिता, और गा बजाकर तेरी स्तुति बढ़ाई की है प्रभु जी, वचन के द्वारा जो भी तेरी स्तुति बढ़ाई की है प्रभु जी यीशु मसीह, हम तुच्छ निकम्मों की ये सब तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। हम तेरे चरणों में रखते हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी, तेरी दया हम पर, हर एक पर बनी रहे प्यारे पिता। और प्रभु, एक अंश और हम तेरी ओर बढ़ सके प्यारे पिता, ऐसा तू फजल प्रदान कर प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हमारी बत्तियों को ट्रिम कर दे प्रभु यीशु मसीह, हमारी कुप्पियों को तू तेल से भर दे प्यारे पिता। जबकि इस संसार में रहते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम इस संसार में लिप्त हो जाते हैं प्यारे पिता, तेरा आत्मा हमें प्रभु धिक्कारता है प्रभु, तेरा आज वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह, हम तैयार हो जाते हैं प्यारे बाप आसमानी। जब हम इस फेलोशिप में आते हैं प्रभु जी, तो उससे चार्ज पाकर प्रभु हम चार्ज हो जाते हैं प्यारे पिता। इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, हम तेरे गले की भेड़े हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, हमें नहीं पता हमें क्या करना है प्रभु, लेकिन प्यारे पिता ये तेरी जिम्मेदारी है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि भेड़ अपना मार्ग तैयार नहीं कर सकती प्यारे पिता। वो अपने चरवाहे के पीछे प्रभु जी अपनी आंखें लगाए हुए उसके पीछे चलती रहती है प्यारे प्रभु। तू जहां ले जाए हम तेरे साथ है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, तूने हमसे वादा किया, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा प्यारे पिता। तब तक तूने प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपना वचन तैयारी के लिए हमें दिया, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो हमारी सुबह शाम दोपहर की रोटी है प्यारे प्रभु, जिसमें से तेरे बच्चे खाते हैं प्यारे पिता, पाप आसमानी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमें तो तैयारी का जीवन दे प्यारे पिता, ताकि हम इसको खा पी कर प्रभु और हष्ट-पुष्ट हो सके प्यारे पिता। और उस दिन के लिए प्रभु जी, जो धधकते थे भट्टे के साथ दिन आने वाला है प्रभु, उससे बचने के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चे एक अंश और प्रभु तेरी ओर बढ़ सके, जिनको लेने के लिए तू आने वाला है, ऐसा तू फजल प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, हमारी जो भी जरूरतें हैं प्यारे पिता, सब तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस स्वर्गीय भंडार तक पूरी की जाए प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, हमारे करैक्टर बहुत अच्छे नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम जैसे भी हैं, हम अंगीकार करते हुए तेरे चरणों में आए हैं प्यारे पिता। तू हमें स्वीकार कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु, जब तक फिर द्वारा मिलते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक भाई बहन, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे सेवकों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपने अगुओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। जो जहां भी मिनिस्ट्री चल कर रहे हैं प्रभु जी, जहां भी सेवाएं हो रही है प्रभु जी, उन पर तेरी आशीष हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और जो भी तेरी बची हुई भीड़ है प्रभु, जल्दी से जल्दी गले में आ सके प्यारे पिता। अपने प्यारे भाई फ्रैंक को भी याद करते हैं प्रभु, उसकी सेवकाई को याद करते हैं, अपने सेवक पर को बड़ी आशीष दे। बुजुर्गी में तूने अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। भाई मैनल को, भाई जसविंदर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, इस जूम मीटिंग पर तेरी आशीष मांगते हैं प्यारे पिता। हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। जब तक आप फिर द्वारा मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक भाई बहन बच्चे को तेरे जोर और हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, यदि तेरी आमद है तो प्रभु अपनी आमद के लिए हमें तैयारी बसते प्यारे पिता, और हम तेरे साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हो सके। प्यारे मेहरबान बात, सब बातों का कंट्रोल, अपने आत्मा प्राण देहों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हुए, वापस मानी छोटी सी विनती, अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिटते नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो एक समय के लिए, अच्छे हाँ, समय के लिए, हर चीज के लिए। जो दुआएं हमने मांगी, जो गीत गाए, वचन सुना, हमारी जिंदगियों के अंदर वो कामयाब हो। हम सबको अब ग्रीट कर सकते हैं, और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई इमानुअल जी। प्रेज द लॉर्ड भाई जय मैनुअल, मसीह। प्रेज द लॉर्ड।